ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਕਹਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ। ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਹੈ ਜੋ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਵੀਕ ਵੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ 24 ਜਨਵਰੀ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਵੀਕ 21 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ 71st ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ 71st ਕਦੋਂ ਸੀ? 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2015। ITC ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20th ICSI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DRDO ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। IIT ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਔਰ ਖਾਗੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ, ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ NV ਰਮਾਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਟਰਨ ਸਿੰਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਵੈਟਰਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਓਬਿਚੁਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਿਖਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 2021 ਮਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। 2021 ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਡਲ ਸਪੀਲਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਖਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਰੀਸਨ ਸਿੰਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ $1 ਲੱਖ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ।
ਮਹੀਰ ਦਲਾਲ ਗਾਜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹੀਰ ਦਲਾਲ ਨੇ ਗਾਜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ऑथर ने इन्होंने बुक लिखी है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी किन्ना ने लिखी है? महीर दलाल ने। 15 लाख रुपए की प्राइज मनी इस दे विच याद रखांगे। चंदी प्रसाद मोहंती वाइस चीफ अपॉइंट किए गए हैं इंडियन आर्मी के। श्याम श्रीनिवासन MD CEO ने फैडरल बैंक के। इन्हों बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर इन्हों नामित किया गया है श्याम श्रीनिवासन। फॉर्मर एंड फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले वूमेन चीफ जस्टिस और फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल। करंटली गल करते हैं पंकज मित्तल ने, तो ਜਿਹੜੇ गीता मित्तल ने ये न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल के। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल के। लियोड ऑस्टिन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बने ने US सैक्रेटरी ऑफ डिफेंस। USA सैक्रेटरी ऑफ डिफेंस। DRDO द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड सौ यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैपन टेस्ट फायर्ड किया गया ओडिशा कोस्ट तो फ्रॉम इंडियन हॉक M132 एयरक्राफ्ट तो जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया सी। ठीक है जी। अगर गल करते हैं 100 की, तो 100 नूं बनाया गया DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने, और इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस द्वारा आइस हॉकी एसोसीएशन की 10वीं नैशनल आइस हॉकी चैंपीयनशिप जीती गई है, जो कि गुलमर्ग दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है जी। रिपोर्ट डायरैक्टली पूछी जाती है कि केड़ी रिपोर्ट किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इस तरीके नाल डिफरेंट इंडैक्सिस डायरैक्टली पूछ ले जाते हैं। फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखा क्वारंटाइन फैसिलिटी का कित्थे? पदपाई चेन्नई दे विच। रैपिड असैसमेंट सिस्टम शुरू किया गया नैशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा इलैक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री द्वारा। किस दे लई? फीडबैक पता करने दे लई भी जिन्होंने वैक्सीनेट किया जा चुके। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा द्वारा माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति एक माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी दे नाल श्रम साथी ट्रेनिंग मैनुअल भी लॉन्च किया गया गोवा दे बेसिकली पणजी दे विच। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा केंद्रीय विद्यालय की 2 बिल्डिंग्स नूं इनॉग्रेट किया गया बेतीहा और कोरबा दे विच। कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी द्वारा कोल मिनिस्टर अवार्ड दिते गए हैं, तो किन्होंने दिता गया है अवार्ड? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स, वैसटर्न कोलफील्ड्स। ठीक है जी। ऑप्शन दे विच 4th ऑप्शन ऐसा दिता होएगा जो ओड होएगा, यानी कि कहा जाएगा कि किन्होंने नहीं दिता गया, तो जिस दे विच बेसिकली साउदर्न आ सकता है। ठीक है, ईस्टर्न आ सकता है। तो याद रखांगे किन्होंने दिता गया? नॉर्दर्न, वैसटर्न और सेंट्रल नूं। इसी दे नाल प्रोजेक्ट पैशन भी लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी द्वारा। धरवद करनाटका तो लोक सभा MP ने, याद रखांगे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा वर्ल्ड कहांगे कि रिकॉर्ड बनाया गया। 3.5 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई है वासुकी, लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन वासुकी चलाई गई है। ठीक है। इस तो पहले अपने शेषनाग डिस्कस की हुई है, तुहानूं याद होएगा। शेषनाग बेसिकली वो आई थिंक 2.8 किलोमीटर सी। ठीक है, ये 3.5 है, सब तो बड़ी यही है। इस तो पहले शेषनाग चलाई गई सी, या उस तो भी पहले गल करते हैं एनाकोंडा चलाई गई सी। ठीक है, वो बेसिकली 2 किलोमीटर की सी।
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा द्वारा आदि महोत्सव रीस्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली दे विच। यूएई गल करते हैं फर्स्ट अरबिक कंट्री बन चुकी है जिसने रशिया की स्पूतनिक 5 वैक्सीन नू अप्रूवल दी है एमरजेंसी यूज़ के लिए। इसी तरीके नाल हंगरी फर्स्ट यूरोपियन यूनियन की कंट्री बन चुकी है जिसने रशिया की स्पूतनिक 5 नू अप्रूवल दी है। ठीक है जी। हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट है। करेंसी फॉरेन चल रही, करेंसी फॉरेन। इंडिया द्वारा कोविड शील्ड वैक्सीन भेजी गई है सियाचील्स और मॉरिशस दे विच। कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रूपी है। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रूपी है। इंडिया द्वारा ही MiG-29 और सुकोई एयरक्राफ्ट नू बाय करने के लिए अनाउंस किया गया रशिया तो कि 21 MiG-29 और 12 सुकोई बाय किए जाएंगे रशिया तो। इंडिया का लार्जेस्ट, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विरोचन नगर सनद अहमदाबाद दे विच बनाया जा रहा है। किस दी हैल्प दे नाल? अदानी ग्रुप की हैल्प दे नाल विद 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। गुजरात सरकार द्वारा मोधेरा सन टैंपल शोकेस किया जाएगा रिपब्लिक डे परेड दे विच, यानी कि अज दे दिन। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इनोग्रेट किया गया पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन दलनवाल देहरादून दे विच पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने इन्हों द्वारा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर अनाउंस किया गया कि विप्रो कंपनी एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर लगाएगी भोपाल दे विच। किथे? भोपाल दे विच। इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल किथे लॉन्च की गई? चेन्नई दे विच लॉन्च की गई। तेलंगाना द्वारा 8 पैथोलॉजी लैब्स जिन्होंने मिनी हब्स के नाम तो जाना जा रहा है हैदराबाद दे विच लॉन्च की गई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा तोशाली नैशनल क्राफ्ट मेला भुवनेश्वर दे विच। होम मिनिस्ट्री द्वारा राजस्थान पुलिस अकैडमी जो कि जयपुर की है इसनू बेस्ट इंस्टीट्यूट नामित किया गया ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स नू। लद्दाख पहली यूटी बनेगी जो कि रिपब्लिक डे परेड दे विच लद्दाख ऐसी यूटी बनेगी जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगी रिपब्लिक डे परेड दे विच। लद्दाख की जी टैबेल्यू होएगी वह होएगी थिक्से मोनेस्ट्री दे उत्ते। ठीक है जी। इसी तरीके नाल कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं आप स्टैटिक पोर्शन के वाल और उस तो बाद अपनी न्यूज़ डिस्कस करांगे। तो स्टैटिक पोर्शन के विच एक्सरसाइजिज अजय वॉरियर यूके दे नाल, कोंकान यूके दे नाल और इंद्रधनुष भी यूके दे नाल इंडिया परफॉर्म करता है। ठीक है जी। इसी तरीके नाल सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल दे नाल और हरिमऊ शक्ति मलेशिया दे नाल। हरिमऊ शक्ति केड़ी कंट्री दे नाल? मलेशिया। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन दे विच। द फर्स्ट क्वेश्चन अपना फर्स्ट न्यूज़ नैशनल वाटर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो नैशनल वाटर्स डे 25 जनवरी नू ऑब्जर्व किया गया। 25 जनवरी नैशनल वाटर्स डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। तो किन्नवा ऑब्जर्व किया गया कि कोई स्पैशल होएगा इस दे विच की चीज़ां होणगियां, डिटेल डिस्कस करते हैं पूरी। डिटेल तो इलावा कुछ स्टैटिक फैक्ट डिस्कस कर लेने कि यह इलैक्शन कमीशन की फॉर्मेशन करके ऑब्जर्व किया जाता है और इलैक्शन कमीशन के इफैक्ट ने जोड़े इंपोर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इलैक्शन कमीशन का हैडकुआटर कितने है? न्यू दिल्ली के विच है। इलैक्शन कमीशन कदों बनाया गया सी? 1950 के विच बनाया गया सी। इलैक्शन कमीशन के विच चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंदे ने, उस तो बाद 2 इलैक्शन कमिश्नर होंदे ने। ठीक है जी। चीफ इलैक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा। इलैक्शन कमिश्नर ने जोड़े 2, एक ने सुशील चंद्र और दूसरे रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी राजीव कुमार जो कि पहले फाइनैंस सैक्रटरी भी रह चुके हैं। ठीक है जी। ये फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए। इस तो इलावा कॉन्स्टिट्यूशन के विच इलैक्शन की अगर आप गल करते हैं तो 324 आर्टिकल है, इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। बाकी वोटर्स डे रिलेटेड पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं तो यह 11th एडिशन है नैशनल वोटर्स डे का।
11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉसी ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਵੋਟਰਸ ਐਮਪਾਵਰਡ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਵੋਟਰਸ ਐਮਪਾਵਰਡ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ। ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੀਏ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਈ ਐਪਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 50th ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 1971 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ UT ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, UT। ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ UT ਰਿਹਾ, ਔਰ 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗੀ? 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 50ਵਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਡਾਦਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड। इस बुक के ऑथर कौन ने, राइटर कौन ने? तो इस बुक के राइटर ने अविन्यू कीरे इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी। इस तो इलावा एल्फ्रेडो कोविली द्वारा वाहन मास्टर क्लासिस, गणेश जी उत्ते बुक लिखी गई सी, इटली तो बिलोंग करते हैं पर्सन, एल्फ्रेडो कोविली, वाहन मास्टर क्लासिस। स्तुति शर्मा द्वारा लिखी गई सी एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। इस बुक को लिखा गया स्तुति शर्मा। AKM दास द्वारा RSS इन केरला बुक लिखी गई सी, जिसनों रिलीज़ किया सी मोहन भगवत, जो कि RSS के चीफ ने। रूपा चारी द्वारा जी बुक लिखी गई सी सूत्रा वेदनाची, जिसनों रिलीज़ किया सी श्रीपद येसो नायक ने। गोवा दे विच रिलीज़ किया सी बुक कोंकणी लैंग्वेज दे विच सी, और श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर सीगे। ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री का चार्ज इन्होंने एक्सीडेंट तो बाद कुछ टाइम लिए किन्होंने दिता गया? किरण रिजिजू को दिता गया, जो कि करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ने। ठीक है जी, याद रखांगे। श्रीपद येसो नायक वैसे गोवा तो ही लोक सभा MP भी ने, नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ਆਪਾਂ डिस्कस किया कि 23 जनवरी ਨੂੰ सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी लंघ के गई। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी जो इन्हों की लंघ के गई है, तो एक अवार्ड दिता जाता है हर साल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 कैटेगरी के दिता जाता है, दोनों रिलेटेड डिस्कस करांगे। अवार्ड किन्हों ने जीते है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिता है। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन डिस्कस कर लें तो सोनू सूद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिता सी इन्होंने, एसर के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी ये।
होर भी काफ़ी चीज़ां ने अगर आप गल करते हैं इन्हां दा नाम कई जगह तो न्यूज़ दे विच रहा पैटा का भी इन्हों अवार्ड दिता गया है। अगर आप गल करते हैं हॉट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया सी इन्हों, ठीक है। इस तो इलावा अगर गल करते हैं पैटा का अवार्ड जिहड़ा मेन अवार्ड है पैटा का तो वह दिता गया सी इस साल का जॉन इब्राहिम नूं। हेमंत कुमार पांडे DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। VK यादव की हुंदे सी? VK यादव हुंदे सी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। और इन्हों अवार्ड दिता गया सी एमीनेंट इंजीनियर अवार्ड। तो कमेंट बॉक्स से भी दसने कि नवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए, ठीक है। नीतल नारंग सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैड अपॉइंट किए गए सी। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हैडकुआटर कित्थे है? तो इंदौर MP दे विच। तो न्यूज़ की है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अनाउंस किए गए। 2 कैटेगरीज दे विच दिता जाता है, ठीक है। पहली कैटेगरी दे विच 51 लाख प्राइज़ दिता जाता है और सर्टिफिकेट दिता जाता है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि यह अवार्ड एक तो इंस्टीट्यूशन नूं दिता जाता है और एक दिता जाता है इंडिविजुअल नूं। इंस्टीट्यूशन नूं 51 लाख रुपए दिते जाते हैं और इंडिविजुअल नूं 5 लाख रुपए दिते जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी दे विच अवार्ड दिता है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसनों शॉर्ट फॉर्म दे विच सीड्स के नाम तो जाना जाता है। सीड्स सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ने अवार्ड दिते है इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी दे विच। और पर्सन यानी कि इंडिविजुअल की कैटेगरी दे विच डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट दे विच इन्हां दे काम दे लई इंडिविजुअल कैटेगरी दे विच इन्हां ने अवार्ड दिते, ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज़ वॉन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यह अवार्ड जी फेस्टिवल है यह 16 तो लैके 24 तरीक तक ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। किनवा एडिशन सीगा? 51st एडिशन सीगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। इस दे विच एक अवार्ड दिता जाता है काफ़ी फेमस अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। हर साल का इंपोर्टेंट बनता है। इस साल किसनों दिता गया? इंटू द डार्कनेस। फोर्थ ऑप्शन इंटू द डार्कनेस। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा पहले कुछ होर क्वेश्चन डिस्कस कर लेने जो कि इंपोर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अनदर राउंड इस दे विच ओपनिंग मूवी रही सी। ओपनिंग मूवी कित्थे दी सी? यह मूवी सीगी डेनमार्क दी मूवी सी। इस दे डायरैक्टर सीगे विंटरबर्ग इस दे डायरैक्टर सी। वाइफ ऑफ अ स्पाई क्लोजिंग मूवी रही है, क्लोजिंग मूवी जापान दी मूवी है। और इस दे डायरैक्टर सीगे कुरुसावा क्योशी कुरुसावा समथिंग नाम सी। मेहरुनिसा मिड फेस्ट मूवी रही सी, इंडियन मूवी मिड फेस्ट मूवी। और इस दे डायरैक्टर सीगे संदीप कुमार, ठीक है। बेसिकली जलीकट्टू की गल करते हैं, इसना कोई रिलेटेड नहीं है। जलीकट्टू ऑस्कर दे नॉमिनेट की गई है, तमिल मूवी है, ठीक है। अगर इसी दे गल करते हैं तो इसी दे विच फोकस कंट्री किहड़ी रही सी? बांग्लादेश रही सी। 51st एडिशन दे विच फोकस कंट्री बांग्लादेश। इसी दे विच ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया गया सी सत्यजीत रॉय नूं ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया गया। इसी दे विच एक अवार्ड होर दिता गया सी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया सी विश्वजीत चैटर्जी नूं, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा पैब्लो सीजर का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। पैब्लो सीजर ज्यूरी के हैड सीगे जिन्होंने अवार्ड सिलैक्ट किए हैं। तो ज्यूरी के हैड पैब्लो सीजर किहड़ी कंट्री तो? अर्जेंटीना तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे। हुण इसी तरीके नाल जिहड़ी इंटू द डार्कनेस मूवी है ये भी किसी कंट्री की होएगी। तो इंटू द डार्कनेस मूवी डेनमार्क की है और इस दे डायरैक्टर का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। तो एंडर्स रैफिन इन्होंने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीते, ठीक है जी। जी क्लोजिंग सैरेमनी सी याद रखांगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा दे विच ऑर्गेनाइज की गई। डायरैक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम स्टैटिक दे विच पूछा जाएगा कि किहड़ी कंट्री दे विच है या किहड़ी सिटी दे विच है? तो यह गोवा दे विच है। नेक्स्ट है एलन मस्क दी कंपनी स्पेसएक्स
ਐਲਨ ਮਸਕ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਕਨ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਸਿੰਗਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? 143 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, डायरेक्टली याद रखा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एंबेसडर टू एशियान सेक्रेटरीएट। एशियान जिहड़ा एशियान ग्रुप है एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस, एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस जो कि 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। जकार्ता इंडोनेशिया ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है एशियान ਦਾ। ਤਾਂ एशियान ਦੇ इंडियन एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? जयंत खोबरागड़े नूं एशियान दे एंबेसडर अपॉइंट किया गया इंडिया वालों। TS त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशनस न्यूयॉर्क दे विच एंबेसडर ने इंडिया दे। इंदिरा मनी पांडे UN दे जिहड़े जनेवा दे विच ऑफिसिस ने, जनेवा दे विच जिहड़े इंटरनेशनल ऑफिसिस ने उन्हां दे एंबेसडर ने इंडियन एंबेसडर इंदिरा मनी पांडे। अनिल सोनी WHO द्वारा WHO फाउंडेशन बनाई गई, उसके हैड अपॉइंट किए गए अनिल सोनी। ब्रजेंद्र नवनीत इंडियन एंबेसडर ने WTO है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस दे विच इंडियन एंबेसडर ने ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है हमारा जवान आयुष्मान स्कीम। हमारा जवान आयुष्मान स्कीम है जी ये किहड़े मिनिस्टर ने लॉन्च की है? तो हमारा जवान आयुष्मान स्कीम नूं लॉन्च किया अमित शाह ने। अमित शाह होम मिनिस्टर ने, गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर, चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ UP तो लोक सभा MP। संतोष कुमार गंगवार एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिनिस्टर ने, बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। और राव इंद्रजीत सिंह स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल मिनिस्टर ने। इस तो इलावा प्लैनिंग मिनिस्टर ने। और गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, तो जी हमारा जवान आयुष्मान स्कीम है इस दे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ने या पूरी स्कीम जी लॉन्च की गई है डिटेल दे डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जी आयुष्मान स्कीम है, सिंपल पहले आयुष्मान जो स्कीम है ये 2018 दे विच लॉन्च की गई सी रांची झारखंड तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई सी। ठीक है, हुण जी हमारा जवान आयुष्मान स्कीम है इसनों अमित शाह ने लॉन्च किया है गुवाहाटी असम दे विच। गुवाहाटी असम तो लॉन्च की गई है ये कि जी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस ने, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस जिस दे विच ये सारे आ गए। फॉर एग्जांपल ITBP हो गया, कल डिस्कस की थी अपने, CRPF हो गया, ठीक है, BSF हो गया, BSF रिलेटेड न्यूज़ भी है डिस्कस करांगे। ठीक है, CISF हो गया। इस तरीके की 7 आर्मड फोर्सिस ने इंडिया दे विच। सशस्त्र सीमा बल हो गया, ठीक है, NSG हो गया। ये 7 आर्मड फोर्सिस ने, इन्हों हैल्थ केयर सर्विसिज प्रोवाइड की जाएगियां हमारा जवान आयुष्मान स्कीम के अंडर। ठीक है जी, संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने लवे और इन्होंने अनाउंस किया कि रिपब्लिक डे परेड दे विच पार्टिसिपेट करनगे टैबेल्यू के नाल, जिसकी थीम होएगी रिस्पैक्ट फॉर हार्ड वर्क एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। रिस्पैक्ट फॉर हार्ड वर्क एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री यह न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी कि आप डिस्कस किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है जी या निर्मला सीतारमन ने जोड़े ये बजट अनाउंस करनगे 1 फरवरी को। ठीक है, कहिए तो एक वीक ही रह गया। ठीक है, तो जोड़े एक वीक यह रह गया। ठीक है, इस दे विच एक इंपोर्टेंट कहांगे कि सैरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, पहले डिस्कस करांगे उसके बारे भी कि जी पहले न्यू डिस्कस कर लेने कि इसके लिए इस साल जो बजट होएगा वो पेपरलैस होएगा। आप डिस्कस किया तो पेपरलैस बजट के लिए यूनीयन बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ताकि MPs और जनरल पब्लिक को ईजी असैस मिल सके बजट का। ठीक है, तो इसनों बनाया किसने गया, इस एप्लीकेशन को बनाया NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर।
ठीक है। बेसिकली पिक्चर भी शेयर की गई इस दे विच कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जो बजट की बनन की शुरुआत होंगी है, जोड़े भी एंपलॉयज़ होंगे ने, जोड़े भी एंपलॉयज़ और मिनिस्टर्स मिलकर इसनूं बनाते हैं, ठीक है, तो वह सारे बंद हो जाते हैं। कहांगे कि उसी प्लेस दे विच जिहड़ी बिल्डिंग होंदी है, बिल्डिंग दे विच बंद कर दिते जाते हैं, ठीक है। कोई मोबाइल फोन्स वगैरह की सर्विस सारियां कट कीतियां जांदियां ने और उन्होंने उत्थे ही रहना होंदा है, ठीक है। तो हलवा सैरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। हलवा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हलवा बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस तो बाद बजट बनाने की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो ये शुरू कर दी गई है बजट बनाने की शुरुआत और फाइनली 1 तरीक को बजट अपना अनाउंस किया जाए, ठीक है। उसके रिलेटेड जोड़े फैक्ट्स होंगे डिस्कस करांगे आप डिटेल दे विच। तो नैक्सट क्वेश्चन है क्रॉप दर्पण। क्रॉप दर्पण एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। क्रॉप दर्पण मोबाइल एप्लीकेशन टू हैल्प फार्मर्स इन क्रॉप डिसीज़ डायग्नोस्टिक, कि अगर किसी क्रॉप दे विच किसी फसल दे विच कोई बीमारी है तो किहड़ी बीमारी है उसनूं डिटैक्ट करने के लिए क्रॉप दर्पण एप्लीकेशन IIT हैदराबाद ने बनाई है। किन्होंने बनाई है? IIT हैदराबाद ने, ठीक है जी। कल भी डिस्कस कर चुके हैं बाकी ऑप्शन से रिलेटेड। IIT दिल्ली कोरोसोर किट, IIT गुवाहाटी फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन, IIT मद्रास मैडिकैब हॉस्पिटल सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। मैडिकैब हॉस्पिटल जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल सी केरला दे विच इसकी शुरुआत की गई सी। IIT रुड़की द्वारा अपने डिस्कस किया सी प्राण वायु वेंटीलेटर। इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी IIT रुड़की रिलेटेड यूनीसेवियर डिवाइस, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, प्लस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस मुंबई ने प्लस एक होर ऑर्गेनाइजेशन इन्हां दे विचों एक अनाउंस किया है एक नवी पॉलिसी प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क। सब तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी यूजनेट। यूजनेट की फुल फॉर्म है उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क। उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क MSME सैक्टर के लिए लॉन्च करने के लिए प्रपोजल किसने दिता है? तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और तीसरा फिकी द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिकी की फुल फॉर्म की अगर आप गल करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी की फुल फॉर्म है। फिकी की अगर आप गल करते हैं फिकी के रिसेंटली हैड अपॉइंट किए गए सी संगीता रेड्डी नूं रिप्लेस करके उदय शंकर अपॉइंट किए गए सी, उदय शंकर, याद रखेंगे। FLO जहनाबी फुकान FLO के हैड ने। फिकी की एक ऑर्गेनाइजेशन है फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखेंगे। इस तो इलावा बाकी तिना दे हैड कमेंट बॉक्स में तुसीं दसने ने कि सिडबी के हैड कौन ने, प्लस सिडबी का हैडकुआटर कित्थे है, हैड और हैडकुआटर सिमिलर तरीके नाल सेबी और NHAI तिना के बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। सिडबी की गल करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तिना दे हैड प्लस हैडकुआटर कित्थे ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा ऑन बॉर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी। बेसिकली अगर बॉर्डर आ गया तो ऑप्शन कुछ तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर पर इन्होंने दोनों फोर्सिस तैनात ने, तो किहड़ी ने लॉन्च की है? BSF। पर अगर आप इसनूं कैंसल कर दिए डायरैक्ट पूछिए कि ऑपरेशन सर्द हवा, तो भी याद रखेंगे BSF द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये बेसिकली हर साल लॉन्च किया जाता है समर और विंटर, ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऑपरेशनस लॉन्च किए जाते हैं बेसिकली राजस्थान के रीजन के यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के उत्ते, समर के ऑपरेशन गर्म हवा और विंटर के ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किए जाते हैं, जिसके अंडर सिक्योरिटी इंक्रीज़ की जाती है। बॉर्डर के उत्ते सिक्योरिटी इंक्रीज़ की जाती है क्योंकि यह जो टाइम होंगे इस टाइम जो क्रूशियल टाइम होंगे इस टाइम के पाकिस्तान वालों टैररिस्ट की जी एंट्री होंगी है इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इस जोड़ा इन्वायरमेंट है सोल्जर्स अच्छे तरीके फेस नहीं कर पाते और
जिस करके टैरिस्ट ईजिली एस्केप हो जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो इस करके सिक्योरिटी ਨੂੰ इंक्रीज़ किया जाता ਹੁੰਦਾ इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा के अंडर। तो विंटर है तो ऑपरेशन सर्द हवा BSF द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है जी, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बन गई। बाकी फैक्ट आप डिस्कस करते ही चल रहे हैं, स्टैटिक दे विच भी आप डिस्कस करते होंगे हैं। तो BSF लेटर डिस्कस कर लेने हैं। BSF न्यू दिल्ली दे विच हैडक्वार्टर है। BSF 1 दिसंबर 1965 दे विच 1 दिसंबर 1965 दे विच बनाई गई सी। और BSF 2 जगह ते तैनात है, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ते और एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ते। ठीक है जी, जिस तरीके नाल ITBP चाइना के बॉर्डर ते तैनात है, उस तरीके नाल BSF इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस तो इलावा इसनू हैड कर रहे हैं राकेश अस्थाना BSF के हैड। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट जेल टूरिज्म। केड़ी स्टेट गवर्नमेंट जेल टूरिज्म की शुरुआत कर रही है हिस्टोरिकल प्रिजनस की विजिट के लिए? तो यह महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। और बेसिकली कि जेडे डिफरेंट प्रिजनस ने जिथे हिस्टोरिकल परसनस रहे ने, इंडिया के हिस्टोरिकल परसनस यानी कि महात्मा गांधी हो गए या जिन्हें भी हिस्टरी नाल रिलेटेड परसनस ने और जेलां कट्टियां ने हर एक ने। तो जिन्हां जिहड़ी जेलां कट्टियां गई ने वो जेलों की विजिट अगर कुछ आम लोग करना चाहते हैं एज ए म्यूजीयम के तौर पर या टूरिज्म में इंक्रीज़ करने के लिए, जेल टूरिज्म इनिशिएटिव किन्ना ने लिया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है जी। यूपी और MP रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, डिस्कस करते हैं। तो MP पहले MP डिस्कस कर रहे हैं। तो MP चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान लॉन्च किया। पंख अभियान 1 साल के लिए पंख अभियान भोपाल दे विच लॉन्च किया गया। पूरा 1 साल यह अभियान चलेगा अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर, जिस दे अंडर PANKH। तो पंख का P का मतलब है प्रोटेक्शन, A का मतलब है अवेयरनेस, N का मतलब न्यूट्रिशन, K मीनस नॉलेज एंड H मीनस हेल्थ। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना। बेसिकली जेडे चीफ मिनिस्टर ने जो पहली बार MP बने सी, ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम लॉन्च की सी लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो उसी का एक अंडर अनाउंसमेंट इन्होंने जो ट्वीट किया, मैंने इन्होंने ट्वीट रीड किया है कि जो ट्वीट इन्होंने किया उससे इन्होंने लिखा है कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंडर ही मैं इस स्कीम को लॉन्च कर रहा पंख अभियान को, जिसका फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी 1 साल के लिए चलेगा, भोपाल के लॉन्च किया गया। ठीक है जी। इसी तरीके नाल भोपाल पहला डिस्ट्रिक्ट बनया इंडिया का टू इशू आईडीज़ फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आईडी लॉन्च करने वाला पहला जिला किहड़ा बनया है? भोपाल। इंडिया का पहला जिला भोपाल। इसी तरीके नाल ट्रांसजेंडर के लिए यूनीवर्सिटी बनाई गई सी, जिहड़ी स्पैशल कित्थे बनाई गई सी? यूपी दे विच। ये भी आप डिस्कस किया सी। ट्रांसजेंडर के लिए यूनीवर्सिटी कित्थे बनाई गई सी? यूपी दे विच। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर धारा बनाया गया। यूपी गवर्नमेंट द्वारा एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर धारा बनाया गया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लगातार चौथी बार कंटिन्यूसली 4th टाइम बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहे ने इंडिया दे विच इंडिया टूडे मूड ऑफ नैशनल पोल द्वारा। अकॉर्डिंग टू इंडिया टूडे मूड ऑफ नैशनल पोल लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। यूपी द्वारा ही अयोध्या कल्चर अनाउंस किया गया कि जो रिपब्लिक डे टैबेल्यू होएगा, यानी कि अज का जो टैबेल्यू होएगा यूपी का अयोध्या के कल्चर उत्ते होएगा और राम मंदिर के उत्ते होएगा। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज का की मतलब है, यानी कि जिस तरीके नाल कहांगे तीर कमान होंदा है वो कहने, इस तरीके नाल ब्रिज है। ठीक है, इस तरीके नाल एक पूरा ब्रिज है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वहरू ब्रिज है, कित्थे इनोग्रेट किया गया? मेघालय दे विच इनोग्रेट किया गया। ठीक है, पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस रिलेटेड न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करते हैं। तब मेघालय दे विच इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज
ਵਹਿਰੂ ਬ੍ਰਿਜ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਲਾਗੰਜ ਨੂੰ ਨੌਂਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12.62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਖਾਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਵਹਿਰੂ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਹਿਰੂ ਰਿਵਰ ਵਹਿਰੂ ਬ੍ਰਿਜ ਸੇਮ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CMERI ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ CMERI, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇसी ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਟਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਲਰ ਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ CMERI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਕੈਨੀਕਲ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने फर्स्ट वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल, इन्हों का पहला वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल एक्वा रेजुविनेशन प्लांट लगाया दुर्गापुर वैस्ट बंगाल के। बेसिकली कि जिहड़ा वेस्ट वाटर है उसनूं इरीगेशन के लिए यूज़ किया जा सके, उसके लिए यह प्लांट लगाया गया। ठीक है जी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा सैन्य धाम देहरादून दे विच, सैन्य धाम देहरादून दे विच फाउंडेशन स्टोन रखा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। पंजाब द्वारा जनवरी 2021 नूं मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया गया। पंजाब द्वारा जनवरी मंथ नूं मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जा रहा है, याद रखेंगे। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।